Point, cover, mid-off, fine leg inside the circle. Third man controlling the fence. Here we go. And starts off with the loosener down the leg side. Runs on the board for Gujranwala. This time the batter lets the bowler know, because if you bowl there, I'm ready to pick you away off the length for the maximum. First one, and it's a beauty. Usama Arif banished that one from that presence. What a magnificent shot. That one kept on travelling unless it landed outside the boundary. utilized the patches I was talking about, but this time utilizing the length. The half volley is Usama Arif. Goes for another boundary over mid-off. He's looking good. But Usama Arif has made his intentions clear. This time he goes down the ground and stylishly put away. What a way to end the over. 19 of the first. Usama Arif already has announced himself that he is here to do that. Oh, have a look at that. That wasn't a half volley by any stretch of the imagination. He has hit it on the up and cleared mid-off in style. It's Mohammad Usama this time, gets his first maximum. He is complimenting his partner. Oh, this time he says, I'm going to hit you in the air, and this time he doesn't connect out of the screws and gets caught in the deep. So plan working here for the captain. He draws the first blood. Much needed breakthrough for the Rawalpindi Marcos. It's a big blow for the batting side because Usama Arif was looking lethal. He was looking dangerous. Good catch. Usama Arif is gone for 16, 26 for 1. Which fielding side captain has taken. That's what I was trying to say. He has been brought in inside the 6 overs and Usama is in merciless mood. And he put that away magnificently straight down the ground for a gigantic 6. What a beautiful shot. Irfan to continue, advancing down the track and caressing it through the cover point for a beautiful boundary. Rizwan looking in very good touch. But still there was some respect for the bowlers. Not this time. He goes aerial and he goes for a one bounce boundary inside out over extra cover. Mohammad Usama looking very good today. Have a look at that for a stroke shot of the day so far. Making room and intentionally clearing the boundary by good margin. Usama, you little beauty. Oh my God. Irfan is under a big scanner here. Again he backed away, made room and then hammered that one over the top of covers and it travelled all the way. Because you got to get it right. Because if you get in the slot, this is what will happen to you. Another boundary. Raining boundaries in Gujranwala. That was one hell of a shot. Swept away beautifully. Found the gap. Another boundary. This time it's Rizwan. This time it's in the air. Is it a chance for the fine leg? 2 of them are under the ball and 1 of them grabs it. So finally, Umar Khan has the last laugh. It looked as if that nothing was happening for the bowling side, but out of nowhere, he's brought about this wicket. They desperately looking to get that wicket, and finally Umar Khan is the one who has broken this partnership. Usama is gone for 36, 67 for 2.
और इस बार बहुत अच्छे अंदाज से स्वीप करने में कामयाब हुए, गैप हासिल किया, स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन हासिल किए रिजवान ने। और इस बार फिर गेंद हवा में और एक और नुकसान यहां उठाना पड़ा गुजरावाला टाइटंस, जो ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये तीसरा नुकसान जिस तरीके का पावर प्ले हमें दिखाई दे रहा था, अब लग रहा था एक बहुत बड़ा टोटल होगा, लेकिन 3 विकेटें शुएब पिंडी को मैच में ले आए। बिल्कुल ये वापसी कही जाएगी। बॉल अच्छा था लेकिन शॉट सिलेक्शन यहाँ पर काफी मायूस कुन थी। रिजवान अहमद 13 गेंदों का सामना किया, 3 चौके भी लगाए, लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर गए। ऑलरेडी बोर्ड पे रन्स बहुत हैं। इस बार खराब बॉल और विकेट कीपर भी जो है उसे रोकने से कासिर रहे और यहां पर 5 रन जुड़ेंगे। इमरान खान आए और कट किया है, यहां पर आउटर एज हुआ और कोई मौका नहीं वहां पर थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर के लिए। 4 रन यहां पर जुड़ेंगे। इस बार बैकफुट पे जाके धमाकेदार शॉट लगाया है और ये जश्न बता रहा है कि इस टाइम कोई मौका नहीं है यहां पर बॉलिंग लाइन के लिए। जबरदस्त हिट यहां पर जैन की जानिब से। ये देखें किस तरह एडजस्ट किया खुद को, थोड़ा सा नीचे गेंद था लेकिन कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहा स्टेड, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे और विकेट गंवा बैठे। और इमरान खान स्टार्ट में रन्स लगे लेकिन यहां पर जबरदस्त वापसी मैं कहूंगा और चौथा नुकसान है यहां पर टीम गुजरावाला टाइटंस को इस विकेट की सूरत में। थोड़ा सी लेंथ को पीछे रखा जिसकी वजह से डिसीव होकर स्टंप हुए जैनुल आबिदीन 9 रन बनाने के बाद। बार टाइम दिया, उसको यूटिलाइज किया है और देखने के सिवा कोई मौका ना था लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर मौजूद फील्डर का। बॉल जो है वो तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। 6 रन अकील की जानिब से। This one is lofted towards the long on and fielder brought off an absolute stunner. He was running side on and I reckon he brought that one off inches off the ground. That is a magnificent catch. Definitely the catch of the day so far. We saw an exceptional catch taken last night as well, but this was definitely way up there. He made his ground, kept his eye on the ball. And Mohammad Akil, the danger man, gets out for 23. It's 118 for 5. Got him. Got him going for the sweep. And Hamza has done him. Why? Why would you do that? You've just lost the wicket. You need to stay there. Playing across the line. That was a good delivery. Probably not there to be swept like that. Yeah, got a bit too eager there, Nasir. His dugout won't be too happy with that effort. That delivery as safe as it gets. And Nasir is gone for 6. 119 for 6. That's a good shot. That'll find the boundary. Yeah, that's beautifully played from Babar. Found the gap, timed it to perfection. He has hit that one and hit that one miles. That's a beautiful shot from Babar. This is exactly what the doctor ordered nowadays for the cricketers or for the any other sportsmen as well. And this is going to be 6 runs as he middled that one beautifully. Babar is becoming lethal now. Yeah, it looked like a 6 from the moment it left the bat. He timed it beautifully. He's looking good. He needs to stay there for his team though. This is 4 runs. This is 4 runs.
Babar is doing a terrific job. कदमों का इस्तेमाल और गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ की जानिब. फील्डर ने अपने आप को पोजीशन किया और कैच करने में कामयाब हुए, और एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि बाबर खतरनाक लग रहे थे. हमजा की ये तीसरी कामयाबी. डिस्टेंस नहीं मिला, ये आप रिप्ले में देख सकते हैं. फ्रंट फुट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेजिटिमेट बॉल है, और डाउन द ट्रैक आकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, जिसकी वजह से एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिली और सफ़र सिर्फ लॉन्ग ऑफ तक था. अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पे फील्डर ने. बाबर 26 पे आउट हुए, 153 पे 7. लेग स्टंप पर गेंद और फील्डर बीट हो गए और रन्स आ जाएंगे इसमें, और बहुत कीमती 4 रन्स. यहां से एक एक रन कीमती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी यह करना है. और तैयब का खूबसूरत और जोरदार छक्का. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इफ इट इज इन माई स्लॉट देन आई एम नॉट गोना वेस्ट 1 आयोटा. 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत शॉट, और काफी दूर जाके गेंद गिरी. किया नहीं उन्होंने, लेकिन अब मेरा सवाल फिर भी रहेगा आपके लिए. और ये कुछ ना कुछ रन आउट का चांस बना है. अंपायर, टेलीविजन अंपायर की जानिब आएंगे और आ गए हैं. दोनों बैट्समैन जो थे वो कंफ्यूजन में थे और बहुत बाहर हैं अपनी क्रीज के, तो टेलीविजन अंपायर के लिए बहुत इजी कॉल होगी. तो देखें, ये जो एक बार रुके वो 2 बार रुके. बैट्समैन से कोई गलत स्ट्रोक ना खिलवा पाए ना सही, मगर कंफ्यूज करके उन्होंने गलती करवा ली. तो जैसे कहते हैं यूजिंग ऑफ द ब्रेन क्रिकेट में ऑलवेज बहुत अहम है, और ये विकेट गिर गई है यहाँ पर 8वीं. ये अंपायर जो आपकी स्क्रीन पर थे अभी, आसिफ आवान, जिन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं. इससे पहले मैं बता दूं कि शाहिद आउट होने वाले बैट्समैन हैं, और उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया. 8 डाउन फॉर 165. बहुत अच्छा शॉट एट द एंड, और प्रोडक्टिव भी हो गया, क्योंकि फील्डर दौड़ते रहे मगर गेंद को नहीं रोक पाए, और 4 रन हो गए, मगर रोकनी चाहिए थी, इस पोजीशन में आ गए. ऑफ स्टंप से बाहर, गॉट दैट अवे एंड गॉट दैट अवे फॉर 4 बैक टू बैक बाउंड्रीज. इनिंग्स की आखिरी. इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए, मगर वहां पर फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री के कुछ यार्ड्स अंदर. उमर खान. जी हाँ, आदिल मुनीर जो कि अपनी बॉलिंग की वजह से जाने जाते हैं, ना कि बैटिंग की वजह से. जूसी फुल टॉस ज़रूर मिली थी. आई थिंक वी कांट टेल फ्रॉम दिस एंगल, बट इट्स अ फेयर बॉल. और एलिवेशन जिस तरह चाह रहे थे नहीं मिली, क्योंकि इसको प्रॉपर मिडल नहीं कर पाए. मिड ऑन के फील्डर उमर खान की कोई गलती नहीं, उम्दगी के साथ उसको कैच किया, और यहाँ पे आदिल मुनीर 9 रन 4 गेंदों पे बनाकर आउट हुए. इस मरतबा जोरदार शॉट खेले हैं, और इस मरतबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए. कैच आप छोड़ेंगे तो ये होगा. ये बहुत कीमती 6 रन हैं. उस साल अच्छी गेंद, रन आउट कर देंगे. जी हाँ, तो इनिंग्स की आखिरी गेंद पे ऑल आउट हो गई है यहाँ पर गुजरांवाला टाइटंस 194 रन बनाकर. तो 195 रन का हदफ उन्होंने रावलपिंडी को दिया है.
very much, Farooq bhai and Rehan bhai, for showing the entire field, and there we go. लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने डाइव किया, वाइड बॉल अपनी जगह, बट गुड टेक बाय द विकेट कीपर. There we go. Shahid living up to his reputation again. इस मर्तबा गेंद स्टंप में लगी, टिम्बर साउंड बरामद हुआ और बेल जो है वो पीछे जाके गिरी. एंड here is the first blood drawn by शाहिद. जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हो गए हैं शाहिद. अरशद खान बगैर खाता खोले पवेलियन जा रहे हैं. रावलपिंडी मारखोर्स 4-1. इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए. फील्डर गेंद की तरफ दौड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं और हाथ में आई गेंद निकली और फिर बाउंड्री से बाहर निकल गई और इस गेंद को उठा दिया ऑन साइड पे. जोरदार शॉट हमजा का और गेंद बाउंड्री से बाहर. स्पेक्टेटर्स में आसिफ का इशारा, ये छक्का. और काफी कंट्रोल था इस शॉट में. लेग साइड की जानिब बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस शॉट को खेला है और प्रेशर को यकीनी तौर पर रिलीज किया है इस बाउंड्री के थ्रू. इस गेंद को ऑफ साइड में हैमर किया है. मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के दरमियान खूबसूरत चौका. इस गेंद को ऊंचा खेले, एज हुआ, बिहाइंड द विकेट, गेंद बाउंड्री से बाहर. 4 रन्स. इस गेंद को ऊंचा खेले सैयद हमजा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब. शाहिद के अगेंस्ट जोरदार छक्का और इस मरतबा गेंद को निकालने में कामयाब हुए. फील्डर मौजूद थे, शायद थोड़ा सा ऑकवर्डली गेंद उनकी तरफ आई और फिर उनसे निकल भी गई. एक और चौका. रन्स तेजी से आ रहे हैं. इस मरतबा ऊंचा शॉट, खतरे में, खतरा खतरा, एंड टेकन. शाहिद का शानदार कमबैक. यू प्लेड 1-2, नॉट टू मेनी. और एक तरह से अपनी विकेट थ्रो किया उन्होंने जब वो पूरी तरह छा चुके थे बॉलिंग साइड पे. लेकिन शाहिद को भी दाद दूंगा जो विकेट लेने में कामयाब हुए. नो बॉल भी चेक की जा सकती है बैट्समैन को, लेकिन लगता नहीं कि नो बॉल है. ऐसा है कि ये फेयर बॉल है, ऐसा लगता है. जोरदार अंदाज में बैट स्विंग किया, गेंद हवा में उठ गई. दायरे के ऊपर 2-3 फील्डर मौजूद थे, उनमें से एक ने गेंद पे नजरें रखी. ये देखें, 2 फील्डर तो एक साथ साथ ही थे, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और कवर्स भी उनके आसपास पहुंच गए थे क्योंकि गेंद काफी देर तक हवा में थी. हमजा 29 रन बनाकर आउट. 35 पे 2 रावलपिंडी. Oh, what a lovely shot. He banished that away. Glanced that away. 4 runs. बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट. स्टूड एंड डिलीवर्ड. चौका. क्वाइट राइट मोहित. इस गेंद को जोरदार अंदाज में मिड विकेट की जानिब खेल दिया है. मिड विकेट पे सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, नहीं रोक पाए. 4 रन्स. मार कट करना चाहा, एज हुआ और 1 2 3 4 रन्स मिलेंगे यहां पर आमिर यासिर. और इंटेंशनली नहीं खेले लेकिन रन्स आए हैं, यहां पर आने भी चाहिए. इस बार हिट मारने की कोशिश और इस तरह तीसरा नुकसान रावलपिंडी मारखोर को. आमिर यासिर आउट हुए या बाबर ने अपने पहले ओवर में कामयाबी दिलाई. जी हाँ, फ्लाइटर बॉल था, खासा टाइम मिला, उसके बावजूद जो है वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो
खेल ना पाए, 6 रन्स के लिए खेलना चाहा और एक आसान कैच इस बार गलती ना की फील्डर ने। और तीसरा नुकसान यहाँ पर आमिर के आउट होने की सूरत में। इस यंग बॉलर ने जो है वो बहुत इंप्रेस किया, इतनी कम एज में ऐसा स्किल सेट। जी हाँ, आमिर यासिर 18 बॉल पर 19 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 3 चौके शामिल। अब उठा के खेला है और ये कहां रुकेगी बॉल, ये शायकीन क्रिकेट में जाएगी। बहुत ही जबरदस्त तालमेल था बैट और बॉल का और काफी देर बाद बाउंड्री आई यहां पर ताहिर बेग के बल्ले से। और ये वो कैरेक्टर है जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये शॉट है। मार, ये वापसी, ये सेलिब्रेशन, ये जश्न जो कि बता रहा है कि टीम गुजरावाला ने एक बड़ा धचका दिया है यहां पर और बहुत बड़ी वापसी है। की विकेट है जिसे हम कह सकते हैं कि विकेट नहीं बल्कि मैच। बॉल टर्न हुआ और रोकने गए थे जो बॉलर्स, बैक कॉट एंड बोल्ड किया यहाँ पर। वेरी वेल बोल्ड बाबर। बाबर हो गई है नसीम भाई यहाँ पर। 4 खिलाड़ी आउट, 83 रन, 9.5 ओवर। जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिसीजन लेना वो भी अपने आप में एक टेस्ट होता है। और इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद को सीधा हवा में उठा दिया और गेंद के नीचे आए बॉलर खुद और गेंद को कैच करने में कामयाब हो गए। एक और अच्छी विकेट मिली है यहाँ पर गुजरांवाला टाइटंस को। अब इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते हुए, कप्तानी की हम बात कर रहे थे तो कप्तान का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल किया था, ज़ोरदार अंदाज में छक्का लगाने गए लेकिन गेंद हवा में गई और उतना ही दूर जा सकी जितनी दूर बॉलर खड़े थे। जेब आउट हुए 3 रन बनाकर 90 पे 5। और आइए अब मैदान में नसीम राजपूत के पास चलते हैं, देखते हैं कि किन लोगों के साथ नसीम भाई मौजूद हैं। हमारे सुहेल भाई साहब मैच करवा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि पाकिस्तान में तारीख में पहली बार इन्होंने गुजरांवाला में ऐसा इकदाम किया कि गुजरांवाला में 7 टीमें आके ये मैच खेल रही हैं। तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। चाय छोड़ें, शरदाई पिएं, दूध पिएं, मक्खन खाएं, ये डंड बैठ के लगाएं, फिर इनको पता चलेगा जो छक्का लगाएगा वो छक्का ही होगा और जो विकेट उड़ाएगा वो विकेट ही उड़ेगी, विकेटें टूटेंगी। इन्होंने 29 दिए, तीसरा ओवर कर रहे हैं और ये नो बॉल भी है, साथ में ये ऊंचा शॉट भी है क्योंकि फील्डर के हाथ में गया, मगर चूंकि नो बॉल है तमाशा ही फॉर द मोमेंट ये ज़रूर समझे कि शायद बैट्समैन आउट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही डिसिप्लिन वापस लाएं जो डिसिप्लिन पहले 2 मैचेस में नज़र आया था, वरना बेहतर टीमों के खिलाफ हम जिस स्टेजेस में जा रहे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल स्टेजेस हैं, ज़्यादा मौका मिलना नहीं है इतनी कोताहियां करके मैच में रहने का। इस गेंद को लपेट के खेले, फील्डर मौजूद, जंप किया। नेल्सन पे अमूमन विकेट गिरती है जिस तरह भी मेंशन किया था दानिश ने, मगर बहुत क्लोज था। और हवा में खेले हैं यहाँ पे, ये चांस हो सकता है। जी हाँ, इन दी एंड लेफ्ट हैंडर जो है वो अपनी विकेट खो बैठे। अच्छी लेंथ पर बॉल डाली मुनीब ने और इमरान खान की विकेट यहाँ पे हासिल कर ली एंड रावलपिंडी मारखोर्स स्लम फर्दर। एक और विकेट हासिल करने में कामयाब गुजरांवाला टाइटंस पूरी तरह से यकजान नजर आ रही है आज के इस मैच में। इमरान खान है जी 11 बॉल्स पे 14 रन करके पवेलियन की तरफ वापस। टीम वर्क के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। इस मरतबा इसको मोड़ दिया है, टाइमिंग इनक्रेडिबल हुई और छोटा मुनीब तेज बॉलिंग करते हैं तो कोई ज्यादा यहां पे ताकत सर्फ नहीं करनी पड़ी हमजा को और उनके पेस ही के साथ हुक करने में कामयाब हुए, 6 रन हासिल किए। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए, बॉलर के पेस को यूज किया, खराब लाइन थी, नो बॉल, एडिंग सॉल्ट टू द वुंड। ये अच्छा आगाज नहीं है 17वें ओवर का यहां पे शाहिद के लिए। फुल टॉस बॉल और इसको भी निकालने में कामयाब हुए हैं। थर्ड ने डाइव जरूर की और रोकने में नाकाम, एक और चौका।
इस मरतबा पिक करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन गैप भी हासिल कर लिया है। जी हाँ, वेल प्लेड। इन द एंड 40s में चले गए हैं अब हमजा इस चौके के साथ। इस मरतबा भी कटर करने की कोशिश की थी, ऑफ कटर लाइन और लेंथ से भटके और खूब सजा दी। आसिफ ने हुक करने में कामयाब हुए। मच नीडेड 6 फॉर रावलपिंडी मारखोर्स। 150 कम्स अप और इस मरतबा हवा में खेले हैं। यहां पे 3 से 4 फील्डर कन्वर्ज हो रहे हैं और बिलाखिर आदिल मुनीर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके कॉटन बोल्ड किया और आसिफ की मुख्तसर इनिंग्स का खात्मा किया। रावलपिंडी मारखोर्स नाउ इन अ स्टेट ऑफ अ डाई। आज के मैच की पहली विकेट आदिल मुनीर की गुजरांवाला टाइटंस की तरफ से। सिक्सर जरूर लगा था, लीगल बॉल, मगर उसके बाद अच्छा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया आदिल मुनीर ने। आसिफ खान 8 पे आउट हुए, 152 पे 7। इस गेंद को ग्लांस करने में कामयाब हुए। ऑन द पैड्स रॉन्ग लाइन और सजा मिली है यहां पे आदिल को। 4 रन्स उमर खान ऑफ द मार्क। शफल किया, खूबसूरती के साथ पिक किया और यकीनन 4 रन्स यहां पे हासिल करने में कामयाब हुए उमर खान। इंप्रोवाइजेशन, ट्राई टू डू समथिंग, बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट टू द ओवर। और इस मर्तबा castled him, too much room, too much shuffling and you miss, I hit. Munib gets his man finally. खूबसूरत यॉर्कर के साथ शिकार किया उमर खान का और उनके इनिंग का खात्मा किया। यहाँ पे बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। मुनीब, ये देखा जा सकता है रिप्ले में, बड़ा अच्छा शानदार बॉल जिसको नीचे उतर के खेले हैं उमर खान। 6 पे 9 रन पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए उमर खान। Back live. अच्छा बॉल, he was fending for it. Did he get the tickle? Yes, he has. Munib back-to-back wickets on fire. एक और अच्छी बॉल और एक और कामयाबी हासिल की गुजरांवाला टाइटंस के लिए मुनीब ने। आप फास्ट बॉलिंग का जिक्र कर रहे थे, एग्रेशन ना हो तो वो फास्ट बॉलिंग ही नहीं होती। Astil Nawaz come and gone for naught. 161 for 9. और बॉल चली है फाइन लेग के ऊपर से, एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। रॉन्ग लाइन की थी यहां पे, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है और इस मरतबा बाहरी किनारा लगा है। फील्डर भी कोई नहीं, अगर होता भी तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह गेंद ऑल द वे ट्रेवल कर गई है 6 रन्स के लिए। इस मरतबा उठा दिया इस बॉल को, काफी देर हवा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का, 50 मुकम्मल हुए हमजा के। ही इज फाइटिंग हार्ड, वेरी हार्ड इंडीड। वेल प्लेड सन। हमजा नजर 50 मुकम्मल किए 35 गेंदों पर। और इसको खड़े खड़े स्टूड एंड डिलीवर्ड स्ट्रेट ऑन टू द साइड स्क्रीन। What belligerent ball striking, bludgeoned away by Hamza. 6 more. हार हो या जीत हो, उसके कते नजर आज मैच का मजा आ गया देखने का और खेलने वालों को भी खेलने का मजा आ गया, शायकीन क्रिकेट को भी देखने। इस बॉल को भी स्टाइलिशली फ्लिक करने में कामयाब हुए। छक्का जरूर हासिल किया। लगातार छक्के 4 लगाने के बावजूद ये मैच तो हार गए, लेकिन यकीनन फाइट करने में कामयाब हुए और 3 रन से ये मुकाबला हारा रावलपिंडी मारखोर्स ने और इन दी एंड गुजरांवाला टाइटंस ने मुसलसल तीसरी फतह जो है वो रजिस्टर करवा दी है पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 2 की।